ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12th ਕਲਾਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੌਸ ਲਾਅ ਜਾਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ। ਲਾਸਟ टाइम ਤੁਸੀਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, जो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होए अगर किसी भी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर चों ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੌਸ ਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੌਸ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੌਸ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਸ਼ੇਪਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਸ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਫॉर द क्लोज्ड सिमेट्री, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर क्लोज्ड सिमेट्री। ठीक है जी। सो टॉपिक है साडा अज दा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। Gauss law help us in the calculating the electric field of continuous charge distribution. It may be line charge distribution, plane sheet charge distribution or charge sphere। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੌਸ ਲਾਅ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ finding the electric field intensity due to long infinite straight uniformly charged wire। मतलब एक लंबी स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ਸ ਪਾਤੀ और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि पूरी ਦੀ पूरी वायर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ यूनिफॉर्म चार्ज है। लेट पॉजिटिव चार्ज ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे खड़ा हूं और मेरे सामने ए ऑब्जेक्ट जेड़ा वा एदा अपर कॉर्नर और लोअर कॉर्नर दोने दिखाई दे रहे हैं। ए मेरा एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट हो गया। पर जिस तरह मैं इहदे नेड़े जाई जावांगा इस डिस्टेंस के उत्ते आके मैं इहदे दोने एंड्स नहीं देख पा रहा। जदों मैं किसी इनलार्ज ऑब्जेक्ट दे बिल्कुल नियर बाय हो जाना ते उस इनलार्ज ऑब्जेक्ट दा अपर और लोअर एंड नहीं देख पा रहा ते इस ऑब्जेक्ट दे रिस्पेक्ट दे नाल ए ऑब्जेक्ट जेड़ा इनफाइनाइट को आए। फिजिक्स विच इनफाइनाइट दा मतलब है, इनफाइनाइट दा मतलब हो गया कि ये जेड़े एंड पॉइंट्स है वो साडे तो बहुत दूर ने। ठीक है, खैर यह किसी ने पूछना नहीं है, मैं तुहानू अपने दर्जे ते दस्सिया। सो गॉस थ्योरम ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਚਾਰਜਡ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਓ
जिहदा डिस्टेंस हैगा लेट आर, इत्थे असी इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना। ठीक है, सो इलैक्ट्रिक फील्ड near the long straight charged wire which has infinite length। ठीक है, सो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल करन दे लई साडे कोल एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਫੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ KQ/r² ਕੱਢੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫॉर द अगर चार्ज मतलब इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਦਿੱਤੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ਲੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰ यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है वो की है लैम्डा वा। लैम्डा मैं क्यों दसिया, क्योंकि इहनूं यूज करना पैना हुण सानूं। ठीक है, क्लियर हो गया इत्थों तक। एक चार्ज कंडक्टर है, काफी बड़ी लेंथ है, उहदे नेड़े एक पॉइंट P दे उत्ते ਅਸੀਂ पता करन जा रहे हैं कितना इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहदी दूरी r है। ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ लिखिया नहीं मैं विच, पर जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਿਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏ। यानी कि ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस हैगा उस पॉइंट का वो उस सिलेंडर का रेडियस आ गया, और जेड़ी सिलेंडर की एक्सिस है वो तुहाडा चार्ज वायर जेड़ी आ उन्होंने मान लिया। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर, समझ आ गई गल, इत्थे तक पता चल गया जी। इत्थे तक करो नोट, में पानी पी ला। ठीक है जी, सो फिर हुण इस सिलेंडर की हेल्प नाल, जो कि आपां गॉसियन सरफेस मन्निया, इहदी हेल्प नाल असीं इलैक्ट्रिक फील्ड लभण जा रहे हां नियर बाय द एनी चार्ज कंडक्टर स्टेट कंडक्टर विच इज इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, सो अगर गॉस थ्योरम इत्ते अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम के हिसाब नाल इलैक्ट्रिक फ्लक्स की आई, गॉस थ्योरम के हिसाब नाल साडे को इलैक्ट्रिक फ्लक्स जिहड़ी आंदी है
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DA ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ आओ देखिए कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आती है। ठीक है, हाल की घड़ी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਰਫੇਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਨਾਲ समझा दिया। वेट ठीक है, लाइक डाबर सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा, सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा, सरफेस नंबर 2 मैं पॉइंट दे देना नु फर्स्ट सेकंड ते सिलेंडर का कर्व्ड हिस्सा जेड़ा पूरा कर्व्ड है ए वाला सारा ए बन गया थर्ड। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल सिलेंडर दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जेडी है वो ਤੁਹਾਡੇ को फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस होएगी। ठीक है, और सारे दे सारे सरफेस अगर मान लो इधर ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ DA, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਲਰ DA ਸਰਫੇਸ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲਰ DA ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ EDA ਇਕੁਅਲ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ EDA cos 90। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੈਕੰਡ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ EDA cos 90। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਥਰਡ ਵਾਲਾ, ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। इट मीन्स कि इन्हां दे विच जेड़ा एंगल है वो थीटा 0 डिग्री है। सो तीसरे लिए आ गया EDA cos 0 डिग्री, cos 90 0, cos 90 0। सो कला रह गया तुहाडे कोल सारी दी सारी फ्लक्स जो सिलेंडर दी रहेगी वो फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस करके आएगी और वो होएगी ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੱਢਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ EDA, इंटीग्रेशन EDA सरफेस की करते पे यहाँ अलग तो इस करके क्लोज इंटीग्रल नहीं पाने चाहिए EDA। ठीक, टोटल सिलेंडर की जेडी इलैक्ट्रिक फ्लक्स कादे बराबर आ गई EDA। बाकी दो जड़ियां फ्लक्सेस है वो नेगलैक्ट हो गया क्योंकि अपवर्ड भी जेड़ा वा वो 90 डिग्री बना रहा, डाउनवर्ड भी 90 डिग्री बना रहा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलैक्ट्रिक फ्लक्स कादे बराबर होंदी है, इत्थे तुसीं अप्लाई कर दियो गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस लॉ। वो कादे बराबर होंदी है द टोटल चार्ज इनसाइड द, एक टोटल चार्ज की है सिलेंडर दे इनसाइड Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EDA। ठीक है, इत्थों हुण अगे आपां अगे चलना क्योंकि मेरे को जगह खत्म हो गई है। इनू दवा दवा नोटिफाई करना कर लो, पॉज करके कर लो, करो पॉज से करो। ठीक है,
ठीक है जी, गां चलते हैं। मैं तुहानू यह फार्मूला आ गया साडे को इंटैग्रल ई डी ए, तुहानू याद हो ना, मैं तुहानू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दस्या सी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार लैम्डा कादे इक्वल हुंदा क्यू पर यूनिट लेंथ दे। अगर मान लो इस सिलेंडर की लेंथ हैगी है एल, जो आप मनी है पर यूनिट लेंथ सिलेंडर की लेंथ हैगी है एल, तो क्यू कादे बराबर आ गया लैम्डा इंटू एल। यह की है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू कादे बराबर आ गया लैम्डा इंटू एल, तो इत्थे भर दिता आपां लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटैग्रल। हुण गल आंदी इंटीग्रेशन दी, क्योंकि किसी भी चार्ज तो इक्वल डिस्टेंस के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड सेम ही होएगा, जिन्ना भी इलैक्ट्रिक फील्ड है हर जगह ते सेम ही आ रहा है, इस करके इहदे ते इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू है, इहनूं बाहर कढता ते इंटीग्रेशन आपां करांगे डीए दी। डीए की आ, डीए हैगा तुहाडा स्मॉल सरफेस एरिया टेकन ऑन द सिलेंडर, ठीक है। जिस तरह पिछले डेरिवेशन च असी कीता सी उसे तरह ही तुहाडे कोल जदों आपां सिलेंडर दे, क्योंकि ऊपर ते थल्ले वाले सरफेस ते इन्वॉल्व रहे नहीं, सिर्फ रह गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ते कर्व्ड सरफेस एरिया इंटैग्रल करांगे पूरे सिलेंडर दा, ते ओदा फार्मूला हुंदा जे 2 पाई आर एल टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखिए, टोटल एरिया अलग है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ कर्व्ड, यानी कि सिर्फ ए वाला हिस्सा, यही वाला हिस्सा ओनली दिस वन, ठीक है। जो वैल्यू फिलअप की असी ते इहदे विचों एल नाल एल इत्थे कट ऑफ हो गया, आपां ते ई दी वैल्यू कढनी आ, ई दी वैल्यू की आ गई तुहाडे कोल, ई आ गया तुहाडे कोल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यह तुहाडा आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इलैक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम आपां किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज लेंथ जो कि इनफाइनाइट लेंथ है ओदे नेड़े ओदे नियर बाई किसी पॉइंट के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड लभन च कामयाब रहे। इहदे तो अगर आपां इत्थे थोड़ा जिहा डिस्कशन करनी होए तो तुसीं नोट करोगे इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा कांस्टेंट है, लैम्डा इहदे च पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, सो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर दे, जो कि यह कंक्लूजन तुसीं इत्ते यह स्टेटमेंट दे सकते हो कि कोई भी चार्ज वायर दे जिन्ने भी नेड़े आवांगे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड उन्ना ज़्यादा होएगा, जिन्ना दूर जाते जावांगे इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा उन्ना घट होएगा। और इलैक्ट्रिक फील्ड और दूरी जिहड़ी है एक दूजे दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी वायर जो कि जिहदे चों यूनीफॉर्म चार्ज आ रहा उहदे नेड़े पॉइंट आर जिन्ना ज़्यादा दूर हो जाएगा इलैक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और बेसिकली भी सानू इस चीज़ बारे पता ही है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इत्थे वैल्यू जिहड़ी आंदी है वो 1/r² आंदी है, बट इन दिस केस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओनली, स्केयर नहीं है इहदे च, ठीक है। करो नोट, यही तुहाडे को पहली एप्लीकेशन जो मैं करवाई इहदे नोट्स तुहानू ऑलरेडी मैं दे चुकिया वां, सो साफ सुथरे तरीके दे नाल इहनू हुण पढ़ियो, ठीक है। ओके करो करो शाबाश। हाँ जी, तो हुण दूसरी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम दी, गॉस लॉ दी। की एप्लीकेशन है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। पहली एप्लीकेशन की सी असी एक लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर है ते ओदे करके किसी पॉइंट के उत्ते
इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता की ही विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हुण की करन जा रहे हैं, हुण आपां एक यूनीफॉर्मली चार्ज सफेयर की गल की है, जेड़ा एक सफेयर है उहदे सरफेस के उत्ते इक्वल अमाउंट का यूनीफॉर्म चार्ज है। आओ जो लिखिया उन्होंने एक्सप्लोर करिए। मान लो साडे को एक सफेयर है जिहदे सरफेस के उत्ते क्यू चार्ज जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है, सारे सरफेस के उत्ते क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। सरफेस का रेडियस जिहड़ा वो आर है। असी पता की करना, असी पता करना इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सफेयर, ऑन द सरफेस ऑफ सफेयर एंड इनसाइड द सफेयर। ਇਹ तीन चीज़ां इस टॉपिक च है। सफेयर के बाहर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सफेयर के सरफेस के ऊपर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सफेयर के अंदर। सफेयर साडा होलो सफेरिकल शैल है, अंदरों खाली है, होलो है। अगर इसकी बजाय क्लोज्ड सफेरिकल शैल होए ते इक्वेशन थोड़ी जी चेंज हो जाती है, वो बाद चो गल करते हैं। सो आओ शुरू करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यह चीज समझ आ गई, साडे कोल सफेयर है जिहदा रेडियस आर है, सफेयर दे सरफेस दे उत्ते क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होया। मान लो आउटसाइड द शैल एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट के उत्ते आपां इस यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लभनी है और ओदी दूरी जिहड़ी है वो हैगी है लेट आर। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर देना। जेड़ा सफेयर दा रेडियस है वो छोटा आर है और जेड़ा डिस्टेंस हैगा दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, सो शुरू करिए जी। कॉन्सैप्ट वही लगना, पर मैं पहला जिन्ना ब्रीफ च गया उन्ना ब्रीफ च जाने की लोड़ नहीं, क्योंकि 3 बार इक्को तरह का ही कॉन्सैप्ट लगाया जाएगा। मान लो आपां आउटसाइड द शैल इस पॉइंट पी के उत्ते एक गॉसियन सरफेस की मांग करते हैं। क्यों? जे गॉस थ्योरम लगानी है तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए की करना पड़ेगा? गॉस थ्योरम लगाने के लिए सानू एक यूनीफॉर्मली चार्ज की गल होगी जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड सेम है ना। आप एक गॉसियन सरफेस रचते हैं जो कि एक सफेरिकल शक्ल का, और ओदा जेड़ा सरकमफ्रेंस है उस पॉइंट पी ते इस हिसाब नाल रचिया जाए कि जेड़ा पॉइंट पी है जिथे तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दा सफेरिकल शैल लभे करदे हो, वो पॉइंट पी वो जेड़ा तुसीं इमेजिनरी सफेयर मन्निया ओदे सरफेस ते आ जाए। ठीक है, हुण उस सरफेस ते मन्निया होया इमेजिनरी सफेयर दे उससे पॉइंट पी दे आले दुआले एक छोटा जिहा सरफेस एरिया मान लो जो आपां मनदे आए हैं दैट इज डी ए। की मन्निया? डी ए, स्मॉल सरफेस एरिया। हुण स्मॉल सरफेस एरिया ते एरिया वैक्टर की होएगा? डेफिनेटली यार है सफेयर, तो सफेयर दा एरिया वैक्टर जेड़ा मैं तुहानूं दस्सिया ही एरिया वैक्टर सरफेस दे हमेशा परपेंडिकुलर होएगा। सो एदी डायरेक्शन एरिया वैक्टर दी इधर आएगी, डी ए वैक्टर दी डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो जे असी इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करिए जो कि यूनीफॉर्मली चार्ज क्यू करके है, तो ओदी डायरेक्शन भी अलोंग परपेंडिकुलर आउटसाइड होएगी उस पॉइंट ते, तो वो भी सेम होएगी। यानी कि फिर एक बारी पिछला ही कॉन्सैप्ट बनन दिया, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डायरेक्टली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी डायरेक्टली आउटवर्ड है। आओ सीधा ही असी लगाइए गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P इज गिवन बाय, इन्हू करो तो ही एक मिनट बस, जस्ट एक मिनट करो मैं
एक चीज रह गई मेरी। हाँ ते की होया कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ਆਪਾਂ ਗॉसियन सरफेस मान लिया। उस इस पूरे गॉसियन सरफेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗॉस ਥ्योरम ਬੋਲਦੀ ਆ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲਰ ਏਰੀਆ dA ਵੈਕਟਰ इज इक्वल टू गॉस थ्योरम की है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्यों क्योंकि इंटायर चार्ज कितना वा ए अगर गॉसियन सरफेस मन्निया ते गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज टोटल कितना टोटल चार्ज q है भावें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है हुण हुणे हुणे गल कीती है कि इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर दोनों की दिशा सेम है। सो दिशा सेम होने करके ये आ गया तुहाडे को EDA cos 0 डिग्री दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इंटेग्रल EDA इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है समझ आ गई। अगर गल करिए एस गॉसियन सरफेस की तो एक सफेयर है। ठीक है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया इलैक्ट्रिक फील्ड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ डिस्टेंस ਤੇ ਆ इक्वल डिस्टेंस ਤੇ। सो इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और अगर इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ਉਹਦਾ इंटैग्रल ਤੇ हो नहीं सकता। इंटैग्रल कादा होएगा सिर्फ एरिया वेक्टर का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ते एरिया वेक्टर कादा एरिया कादा है स्मॉलर एरिया ते हैगा ਤੁਹਾਡੇ को स्फेरिकल शैल ਦਾ। सो स्फेरिकल शैल ਦਾ टोटल इंटैग्रल dA एक बारी फिर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ स्फेयर गॉसियन स्फेयर ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ रेडियस कैपिटल R ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ को 4 पाई r स्क्वायर। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ E 4 पाई r स्क्वायर q एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करा सो ए इलैक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ए इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडा निकलिया आउटसाइड द शेल एट एनी पॉइंट P द इलैक्ट्रिक फील्ड इज सेम। जो इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही वही आ गया। लगभग इलैक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो इत्थे आ भी गल कही जा सकती है कि अगर आपां एक स्फेयर दे आउटसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लभदे आ जिहदे उत्ते यूनीफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैगा उस स्फेयर ते उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी है वो जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज आएगी। यानी कि किसी भी होलो सरफेस दे अंदर चार्ज यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिता गया पर वो चार्ज जिहड़ा वा वो इस तरह बिहेव करे करदा जिस तरह ए एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है इवन बुक च भी लिखा होया पर मैं तुहानू थ्योरी नहीं करवा रहा सिर्फ डेरिवेशन की गल हो रही है। सो पहला ए पॉइंट निकलिया एट आउटसाइड द स्फेयर। मैं तुहानू शुरुआत ही दस दिता कि असी की करन जा रहे हैं असी करन जा रहे हैं यूनीफॉर्मली चार्ज स्फेयर है उस यूनीफॉर्मली चार्ज स्फेयर दे बाहर इलैक्ट्रिक फील्ड ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਿੰਨੇ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਛੇਤੀ। हाँ जी कर लिया नोट। सो आया ते आ गया चार्ज आउटसाइड द पॉइंट। ठीक है हुण आपां गल करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ होलो स्फेयर और स्फेयर। हुण जिहड़ा स्फेयर तुसीं लिया उस स्फेयर दे सरफेस दे उत्ते कोई पॉइंट
यानी कि हुण बाहर की गल नहीं आनी, हुण गल आनी है सरफेस के उत्ते पॉइंट। हुणे हुणे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीता एट आउटसाइड। आउटसाइड द सफेयर इलैक्ट्रिक फील्ड की आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस द स्क्वायर, जो भी आउटसाइड डिस्टेंस है। इन दिस केस जेड़ा तुहाडा डिस्टेंस है वो सरफेस के उत्ते ही आ गया। चार्ज का पता करना, इलैक्ट्रिक फील्ड आपां हुण उहदे उत्ते ही पता करना, यानी कि जेड़ा कैपिटल आर है वो बन जाएगा बिकम्स स्मॉलर आर। यही हो जाएगा ना, पहला बाहर सी वो कैपिटल आर ही, हुण की हो गया, हुण वो आ गया इत्थे इस जगह। फिर इलैक्ट्रिक फील्ड की आ गया, बस छोटी जी सब्स्टिट्यूशन कर दो। इलैक्ट्रिक फील्ड एट any point on the surface will be 1/4 pi epsilon naught q upon r square। याद रखियो स्मॉलर r इस करके क्योंकि हुण उस होलो स्फीयर दे सरफेस उत्ते पता करन जा रहे हैं। ठीक, आपां यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे विच लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी सी q upon l, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी सी सरफेस चार्ज डेंसिटी q upon सरफेस एरिया q upon a, एक पढ़ी ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इत्थे की आ रहा, क्योंकि चार्ज जेड़ा वा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीता होया सरफेस के उत्ते, देन अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिर्फ समझाने लिए कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, फिर क्यू का बराबर आ गया, क्यू आ गया तुहाडे कोल सरफेस एरिया इनटू सिग्मा। ते जे आपां गल करिए कि साडा सरफेस एरिया काहदा वा, सरफेस एरिया एक सफेयर दा वा जिहदा रेडियस की है स्मॉलर आर। सो सरफेस एरिया की होएगा, सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, यही होएगा। सो ए तुहाडे कोल क्यू दी वैल्यू की आ गई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। ए क्यू दी वैल्यू नु असी इस केस पढ़ता। इस केस पढ़न दा कारण की है, पहले केस विच यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लागू ही नहीं हो रही, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जिहड़ी आ वो तां ही होएगी कि अगर तुहाडे कोल सरफेस होएगा, पर आपां ते सरफेस दे बाहर लभदे पे। हुण सरफेस दे उत्ते आ गया, सो सरफेस दे उत्ते आ गए ते इस जगह दे उत्ते आ गया तुहाडे कोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू दी जगह ते आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। हुण देखो कुछ कटिंग हो रही है, 4 पाई ना 4 पाई, आर स्क्वायर ना आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी की बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ए की आ गया एक्सप्रेशन, ए एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। ठीक है, सो इत्थे की निकलदा पिया वा, इत्थे इस चीज तो निकलदा पिया वा कि किसी भी सरफेस दे उत्ते कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, उस सरफेस दे उत्ते जिन्ना ज्यादा तुसीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीता होया, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी ज्यादा वा। ठीक है, ते एप्सिलॉन नॉट ते तुहाडा एक बारी फिर तो कांस्टेंट ही है। दूसरी चीज भी समझ आ गई, पहला आपां बाहर गए उत्थे पता कीता, फिर वापस आए सरफेस दे उत्ते ते आपां चेंज कर दिता कैपिटल आर नू स्मॉलर आर नाल, क्योंकि डिस्टेंस घट गया, ते उस तो बाद वैल्यू फिलअप होइयां, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी वैल्यू फिल कीती ते इलैक्ट्रिक फील्ड कढिया। ठीक है, करो इनू भी नोट ते फिर आपां करिए लास्ट पॉइंट इहदा। जी हुण तीसरा ते फाइनल पॉइंट, हुण आपां इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड पता करो कि इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर आ रहा, ओदी गल होनी है। देखो पहला सी सब तो बाहर इलैक्ट्रिक फील्ड लभ्या, फिर सरफेस ते आ गए। हुण मान लो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ। ਲੈਟ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈਟ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ r ਡੈਸ਼। r ਡੈਸ਼ will be the distance from center, जिथे आप पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इत्थे भी आप एक गॉस, क्योंकि देखो जे तुसी गॉस थ्योरम लगा रहे हो तो गॉस थ्योरम लगाने दे उत्ते एवरी टाइम गॉसियन सरफेस जेड़ा वा जेते है वा जेदा पहला है सी वो गॉसियन सरफेस ही, क्योंकि क्लोज्ड ही और वो शैल सी, पर इनसाइड ते कोई शैल नहीं है। आपां खुद इमेजिन करना वा। लेट r dash will be the distance from the center where we have a Gaussian surface। इत्थे आप Gaussian surface लेट कीता, जिथे ते है ही उत्थे है ही, बाहर है ही, उस तो बाहर लेट कीता ही, अंदर भी आप लेट कर लिया। सो इस Gaussian surface दे उत्ते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लभदे पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसी तरह ही आ जाएगा E into dA वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तो पहला कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नु लभीए, इस तो पहला कि ओदा सरफेस एरिया नु फॉलो करिए। क्या इनसाइड एंड द स्फीयर कोई चार्ज अवेलेबल है, एदी गल कर ली। बिकॉज देयर विल बी नो चार्ज inside shell, that is Q दी वैल्यू की है 0 आ गई। अगर Q दी वैल्यू 0 आ गई so electric field also becomes 0। इत्थों तुसीं देख लो यही वैल्यू तुहाडी 0 ही नहीं है। अगर तुहाडी Q दी वैल्यू ही 0 आ जाती है तो तुहाडा EDA दी वैल्यू जिहड़ी है इंटायरली 0 आ जाती है। हुण ए ते 0 हो नहीं सकता क्योंकि सरफेस एरिया मन्निया या कुछ हैगा अंदर जेड़ा गॉसियन सरफेस है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जेड़ा वा 0 है। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ऐसी तुहाडा केस नंबर तीसरा। केस नंबर पहले विच आपां सरफेस के बाहर देखिया जो कि वही एक्सप्रेशन आया जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दा हुंदा किसी पॉइंट चार्ज करके। सौखा दूसरे दे विच आपां ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड देखिया जिहदे विच सिर्फ एक छोटा जिहा चेंज करना पिया। आपां जो चार्ज सी ओदी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी वैल्यू भर दित्ती सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। ते तीसरा ते लास्ट जिहदे विच इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, ते चार्ज ही नहीं है ते अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म 0 हो जाती है। ते आ रहा तुहाडा तीसरा केस। करो इहनूं नोटिफाई ते खत्म करिए गो। हाँ जी, सो यही तुहाडे को दूसरी एप्लीकेशन गॉस लॉ दी। हुण गॉस थ्योरम या गॉस लॉ दी तीसरी ते फाइनल एप्लीकेशन करन जा रहे हैं असीं। एक्चुअली गॉस थ्योरम दा सब तो वड्डा बेनिफिट यही है कि वो कंपलैक्स तो कंपलैक्स सिस्टम दा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा वो तुहानूं फाइंड आउट कर दिंदी है विदाउट ओदे सरफेस एरिया नूं कैलकुलेशन दी। ठीक है, ज़्यादा जरूरत नहीं बनती। सो ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ एंड रिजल्ट्स ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ अगर तुम डेरिवेशन करते हो तो वह स्टार्टअप पॉइंट थ्योरी तो वह एंड पॉइंट जोड़ा वा वो न्यूमैरिकल बनांदा। सो इस करके डेरिवेशन जी उन्होंने थोरोली करना चाहिए। चलो जी आओ जी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन plane
infinite uniformly charged sheet। मतलब एक लॉन्ग कंडक्टर ਦੇ ਨਾਲ स्ट्रेट कंडक्टर ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਨਾਲ। ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ 3D ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ। ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗਾ। मान लो एक प्लेन शीट है, ठीक है, टू अपने 3 डायमेंशनल शक्ल देने लिए इस तरह बनाया, ठीक है, और ए यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब है कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पूरी तरह चार्ज है। ਅਸੀਂ इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾय इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है with the help of Gauss theorem, क्योंकि Gauss theorem ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। और जिन्नी बार भी आप गॉस थ्योरम लगाई है, गॉस थ्योरम लगाते गॉस थ्योरम हमेशा गॉसियन सरफेस के उत्ते लगती है, जो चाहे इमेजिनरी ही क्यों ना हो। सो आप इत्थे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की रचना करांगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करांगे तां जो कि सानू ईजीली पता चल जाए, ठीक है। मान लो इस शीट दे विचों एक गॉसियन सरफेस जिहड़ा वा वो बनाउण जा रहे हैं, और वो गॉसियन सरफेस जो बनाया गया वो है एक सिलेंडर, वो है एक सिलेंडर। एक मिनट, डस्टर कितने गया मेरा? हाँ जी, ते ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूनिफॉर्मली चार्ज एक इनफाइनाइट शीट है। देखो इनफाइनाइट का मतलब मैं पहला भी दस चुके हैं, इनफाइनाइट का मतलब होंगे जो कि विद रिस्पैक्ट टू किसी चीज़ के वड्डे होए। इनफाइनाइट आप मैथ वाला नहीं थी यूज करना कि बहुत बड़ा। अगर कोई जिदा मान लो यह शीट के नेड़े इत्थे पॉइंट है एक, ठीक है, कितनी दूर है, लेट कोई डिस्टेंस लगा लो, डी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, डी डिस्टेंस दूर है, इत्थे पॉइंट है पी पॉइंट जिथे आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। और इस पॉइंट के हिसाब नाल शीट बहुत ज़्यादा वड्डी होए। मैं पहला भी दस्सिया ना कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इत्थों ਉਹਦੇ अपर और ਜਿਹੜਾ अपर और बॉटम दोनों ਨੂੰ देख पा रहा वा, पर जो ऑब्जेक्ट बहुत नेड़े चल जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ एंड लिमिट्स ਨੂੰ देखना मुश्किल हो जाना। सो विद रिस्पैक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ शीट हैगी है ਇਹ इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो मान लो डी डिस्टेंस के उत्ते पॉइंट पी है जिथे तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, और इस शीट दे उत्ते यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और यह मान के चलते हैं कि शीट के उत्ते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक ही साइड दे या शीट इस हिसाब नाल है कि चार्ज पूरी तरह दे नाल दोनों पासे अवेलेबल है। यह नहीं है कि इत्थे भी चार्ज है तो इत्थे भी चार्ज है, नहीं, ओनली वन साइड है, ठीक है। सो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ
ਜਿਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈ ਕਰੇ। ठीक है, ठीक। सो ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ठीक है, सो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, दूसरा सरफेस ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ और तीसरा सरफेस ਇਹ वाला। ठीक है, तीन सरफेस बनते पे। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की है जो चार्ज इनसाइड है। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਹੈ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 1, ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 3। ਠੀਕ, ਸਰਫੇਸ 1 ਜੋ ਕਿ ਕਰਵਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏਗੀ। इधर भी गल करिए तो अवे फ्रॉम द शीट होएगी, है ना। हुण गल करिए अगर एरिया वैक्टर्स दी, सरफेस एरिया वैक्टर्स दी, तो तुसीं देखो यह जिहड़ा सरफेस हैगा, यह सरफेस दा एरिया वैक्टर उहदे चों परपेंडिकुलर बाहर निकलना। सो इत्थे तुहाडा एरिया वैक्टर लेट मान लो DA जो है वो जिहड़ा वा इलैक्ट्रिक फील्ड दे अलोंग ही आ। इत्थे भी तुहाडा एरिया वैक्टर जो है वो इधर नूं एरिया वैक्टर दे अलोंग ही आ। ठीक है, बट इन दिस केस कर्व्ड सरफेस दे विच जिहड़ा एरिया वैक्टर है वो हमेशा कर्व्ड सरफेस दे परपेंडिकुलर निकलेगा, यानी कि इत्थे एरिया वैक्टर दी डायरेक्शन जिहड़ी आ वो ऑनवर्ड है। इट मीनस अगर आपां तिन्ने इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं देखिए तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स तिन्ने सरफेसिस दी किस तरह आएगी? पहला सरफेस तुहाडा अपवर्ड है, सो यह आएगा EDA cos 90 ऊपर वाली डायरेक्शन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दूसरा क्लोज नहीं है, EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है। इसी तरह ही EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इत्थे तुहाडे कोल cos 90 वाला ए फैक्टर 0 हो गया, यानी कि अलोंग परपेंडिकुलर टू द इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी इलैक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आ गई, और अलोंग दे केसिस दे विच दोनों केसिस दे विच इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ गई EDA एंड EDA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया इत्थे तक? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੱਢੇ, ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 1 2 ਐਂਡ 3, और ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ 0 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ EDA। क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड दोने सरफेसिस दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड की गल कर लीए, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड सेम ही होएगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड सेम होएगा।
सो इत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडा बाहर आ गया, इहदी इंटीग्रेशन नहीं होएगी, और इत्थे भी इलैक्ट्रिक बाहर आ गया, इहदी भी इंटीग्रेशन नहीं होएगी। ठीक है, हुण फिर हुण गल आंदी है इंटीग्रेशन ऑफ डी। देखो अगर आपां इनू गल करते हैं कि यह साडे कोल एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के जिहड़े बेसिस ने इन्हां दा टोटल एरिया की है, लेट ए है। याद रखियो इत्थे तुसी कोई रेडियस का कॉन्सैप्ट नहीं लगाना जो सफेयर च लगा के आए। इन्हां दा एरिया कितना इक्वली ए एरिया वा, ओनली ए। सो टोटल एरिया इत्थे क्या आ गया, इत्थे तुहाडे कोल टोटल एरिया आ गया ई। उस तरह ही इत्थे टोटल एरिया की आ गया, इत्थे भी तुहाडा टोटल एरिया आ गया ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो तुम इसकी वैल्यू देखोगे तो आए ना 2 EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हुण इनू अगे सॉर्ट आउट करने वाले देखिए तो तुहाडे कोल गल आंदी है एक बारी फिर तो ਇਹ क्यू की है, ਉਹ क्यू वैल्यू हैगी है जो कि शीट के उत्ते यूनीफॉर्मली चार्ज सरफेस के उत्ते है। ठीक है, किहड़े सरफेस ते, जो कि इस गाजियन सरफेस दे विच आण दिया। तो जे तुसीं देखोगे तो गाजियन सरफेस दे विच बिल्कुल इहदे इक्वली यही सरफेस च आना ने, जो इहदा सरफेस इहदे विचों कट के, क्योंकि एक सिलेंडर जिहड़ा वा शीट चों जिद्दां ही निकलेगा पार हो के ते इह सरफेस एरिया नूं नाल लै जाएगा, और इस सरफेस एरिया दे विच पिया होया चार्ज जो भी रहेगा वो चार्ज जिहड़ा वा इनसाइड दा गाजियन सरफेस मन्निया जाएगा। सो इस करके अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो कादे बराबर होंदी है, क्यू अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया साडा ए है, सो इस करके साडे को क्यू दी वैल्यू आ गई सिग्मा इनटू ए। सो इत्थे आपां भर दित्ता 2EA सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, सो फाइनली की होया, ए नाल ए दी कटिंग हो गई, तुहाडे कोल की आ गया इहदे च। ठीक है, इत्थे तक देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देना जे तुहानूं पता नहीं चलिया ते। आपां एक प्लेन शीट लई, उस प्लेन शीट दे नेड़े किसी पॉइंट पी दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी ही, क्योंकि आपां गॉस थ्योरम दा इस्तेमाल करना ही, इस करके आपां ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ, ਦੋਨੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ A ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, Q upon epsilon naught। ਇਹ ਕਿ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ, क्योंकि आप गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की ही एप्लीकेशंस करते पे हैं। तो टोटल फ्लक्स 3 हिस्सों में वंडी गई, क्योंकि साडा जिहड़ा सिलेंडर है वो गॉसियन सिलेंडर 3 ਉਹਦੇ सरफेस बनते पे आ, 2 सरफेसिस जिहड़े आ वो आ रहे हैं दिस साइड और एक सरफेस कर्व्ड है। ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਣ ਡਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, और ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਕਰਵਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ EDA ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, DA ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ A ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ DA ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ A ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ DA ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ A ਆ ਗਿਆ। EA 2EA क्यूब वन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो इनसाइड ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ, अगर आप देखिए कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब नाल सिग्मा का बराबर है Q upon A ते Q का बराबर आ गया सिग्मा इनटू A। वैल्यू भर दी। इत्थों फिर तुहाडे को इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की आ गई, इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2, फिर सुन लो, इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਪਲੇਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ठीक है जी। सो साढ़े को फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि इलैक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट नियर बाई किसी भी पॉइंट के उत्ते लैफ्ट या राइट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी है उसका एक्सप्रैशन आएगा सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इत्थे भी गल क्लीयर होनी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आ रहा। इत्थे कोई भी डी की वैल्यू इंटरसेप्ट नहीं की है। ठीक है, सो ऐसी तुहाडे को गॉस एप्लीकेशन की तीसरी ते फाइनल एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ इहदे नाल जुड़े हुए न्यूमैरिकल्स जिहड़े ने वो जो आप न्यूमैरिकल्स करांगे उत्थे मैं तुहानूं पहले कहा न्यूमैरिकल नूं इस करके नहीं हजे करवाया जा रहा तां जो कि जदों रिवीजन मोड होए मैनूं पता होए कि तुसीं इहदे एक्सप्रैशन तुहानूं याद हो गए दे। सो एक तरीका होर दस्सांगा तुहानूं कि अजे तक जिन्ना भी तुसीं पढ़ चुके हो ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਚਾਰजेस, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ पोटेंशियल, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उस तरह ही गॉस थ्योरम दी जड़ियां एप्लीकेशंस तुसीं देखदे पे हो इन्हां दे डेप्थ आउटकम्स नूं देखो। सो इहदे नाल ही साडे कोल गॉस थ्योरम दी एप्लीकेशन ते गॉस थ्योरम नाल जुड़ियां होईयां सारियां चीज़ां नूं आपां खत्म कर दिता। हुण छेती ही आपां नैक्सट अगला टॉपिक शुरू करांगे। होप सो तुहानूं समझ आ गया होए और कोशिश करना बच्चा जी, कोशिश करना बेटा जी, जो भी पढ़ते हो उन्होंने बार बार रिवाइज करया करो। क्योंकि जे गल करिए 11th और 12th की मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे कि वो ज़्यादा डैप्थ नाल पढ़ नहीं पाते तो वो सिर्फ क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बुक का यूज़ करो, नोट्स का यूज़ करो, ट्यूटोरियल यूज़ करो और कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन तुहाडे दिमाग च रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, होप सो तुहानूं वधिया लग्या होए और एक बारी फिर बोलना जिन्ने भी लैक्चर्स ने अपने नाल दियां नाल शेयर करो और कोशिश करो कि एजुकेशन सर्कल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा वधाया जाए। ठीक है, ओके बेटा जी।